अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। जब बात हो शहर फैसलाबाद की तो हमेशा से टेक्सटाइल इंडस्ट्री टॉप ऑफ दी टॉपिक आती है और फैसलाबाद मानचेस्टर है और बरामदात में पाकिस्तान की कुल बरामदात में 64% सिर्फ टेक्सटाइल रखती है। वो टेक्सटाइल गुज़श्ता एक साल से काफ़ी मंदे का शिकार है। अगर देखें तो पाकिस्तान कम व बेश $1.25 अरब की बरामदात में खसारा बर्दाश्त कर चुका है। लेकिन एक अच्छी किरण है, एक अच्छी खुशखबरी है कि शहर फैसलाबाद में जो एक्सपो दुबई में हुआ करती थी वो बोहो ग्रुप की तरफ से सदाकत लिमिटेड के साथ मिलकर फैसलाबाद के अंदर निकाहगुज़री की जा रही है। और ये अपने दौर की, अपने वक्त की बड़ी यूनिक एक एक्सपो है जिसमें सप्लायर यहाँ आए हैं। वो कम व बेश 600 मिलियन के जो ऑर्डर्स हैं वो यहाँ प्लेस करेंगे और ये ग्रुप 4.5 अरब जो पाउंड्स हैं उससे ज़ायद की एक अपनी मालकियत रखता है। एक बड़ा ग्रुप है, बरतानिया में ख़ुद भी रहा तो इनका नाम बड़ा मारूफ है और ये सबसे ज़्यादा तेज़ी से तरक्की करता हुआ ग्रुप है पूरी दुनिया के अंदर। मैं ख़ुद बरतानिया में रहा तो इसका ख़ुद ऐनी शाहिद हूँ कि बोहो ग्रुप वहाँ बड़ी अच्छी से बहुत अच्छी क्वालिटी की चीज़ें बेच रहा है। और मैं सदाकत टेक्सटाइल, सदाकत लिमिटेड इस चीज़ की बहुत ज़्यादा तुरा इम्तियाज़ जाता है कि उन्होंने बहुत बेहतरीन अंदाज में यहाँ एक सप्लायर एक्सपो का इनेकाद किया। मैं सबसे पहले बोहो के CEO मौजूद हैं, उनसे आगाज़ कर लेता हूँ बात का। फिर फाउंडर हैं हमारे साथ, को चेयरमैन हैं और सदाकत लिमिटेड से खुरम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे बात का आगाज़ करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वार्म वेलकम टू यू इन पाकिस्तान। Thank you very much. We're really happy to be here. Both Carol, myself, Mahmood, we've been here many years and many trips before, but always great to come back. I think so. We should be very thankful to you that you are selecting Pakistan, and we are thankful to Sadakat Limited that they have choose Faisalabad specifically because in textile we have a very unique name in Pakistan. So how much you are thinking that you are going to place orders in Pakistan, in Faisalabad specifically? All cities exporters are going to come and visit over here with you. Yeah, I mean, if you look around, this is just one of many rooms we have in this location today. So we've got over 40 manufacturers that have come today. We've got 50 of our buying team from the UK here to make sure over the next 3 and 4 days we place orders, we build new relationships. Sadakat is a long-term relationship that we've had for many years, and they're really the facilitators to bring everybody together today because we feel, and all of us together, that actually Pakistan can be much bigger for us. So today we're making almost $100 million worth of product here in Pakistan, but actually we see the opportunity to take that to $1 billion in the next 5 years. Do you think that Boho Group is going to have trust on Faisalabad, Karachi, Sialkot and other cities exporters, specifically on textile groups? Yeah, correct. And the two main cities, I mean, Faisalabad is number 1 for us, but also Karachi as well. They're the real 2 opportunities. But you know, we get the products here, we get the raw materials, but equally we get the speed. So the speed to market is very important to us. And these manufacturers here today are very flexible on speed, very flexible, great in terms of styling. It's great that Pakistan has got its own raw material. So if it's sweat, if it's denim, etc., it's already here and available in the market. They don't have to export it in from another country. So it's really good. Very thankful. Co-chairman हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ बढ़ूँगा. So first of all, how much you are going to say that the quality of Pakistan products, especially Faisalabad and Karachi, all over Pakistan, textile exports in knitwear, Pakistan have a very unique place in all over the world? Sure. I mean, we've been manufacturing here for many years. Mahmood and I worked together for over 30 years now, so we're very familiar with the quality we can get, the type of product we can get. I think what's very important, and John said earlier, you can go from design to buying and fitting very quickly and get your production out in a matter of weeks. And for our model in e-commerce, that's really very important to us, that we can get our deliveries very fast. So it makes sense that we partner with many of the manufacturers here in Faisalabad. Do you think that Boho is going to be more larger in collaboration with Sadakat and other groups of Pakistan? Well, we like to think so. They're part of our family. We're partners with them. You know, we're going to grow together. Who's going to be the biggest? We don't know in the years to come. But as of today, we've got a very good relationship with them. हमारे साथ फाउंडर मौजूद हैं जो उर्दू भी अच्छी बोल लेते हैं, लेकिन हम चाहेंगे वो जिस मर्जी ज़ुबान में बोलना चाहिए। हम क्वेश्चन प्लेस करेंगे ताकि नाजरीन को भी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर लोग देख रहे हैं, आप कैसे देखते हैं कि एतमाद बड़ा अच्छा है, बड़े अच्छे वर्ड्स, बड़े अच्छे इजहार उन्होंने किया है। आप क्या कहेंगे कि पाकिस्तान की तरफ और ममालिक को और लोगों को आना चाहिए? क्वालिटी, प्राइसेस किस हद तक अच्छी हैं और कितना एक्सपोर्टर ज़्यादा लॉयल है अपने प्रोडक्ट को बना के अपने बाहर तक पहुंचाने? Pakistan is a very competitive place now in the world, and for us, we've been doing business a long time, and we feel the opportunity is 1 billion plus. We have great partners. We just think
the quality, everything works. Everything works. Pakistan is a great place, and for us, it's very special. And we think we can work closely with partners to develop greater and greater business here and build some very good relationships and partnerships. बोहो ग्रुप ये देख रहा है कि पाकिस्तान में आने वाले फ्यूचर, क्योंकि को चेयरमैन ने कहा देखते हैं कौन बड़ा जल्दी हो जाता है, लेकिन हम तो दुआ करेंगे तो दोनों बड़े हों, बल्कि ज़्यादा फैलें और पूरी दुनिया में जॉइंट वेंचर्स लेके बड़े बड़े लेवल्स पे जाएं। This is family. We are partners, so we're going to grow together. It's not like this. It will be. We will all grow together in balance, and we will grow and grow and grow. Inshallah, that's the main thing. हमारे साथ सदाकत लिमिटेड से मौजूद है, मैं इनसे बात का आगाज़ करूँगा। बहुत शुक्रिया आपका, बल्कि मैं आज की इस पूरी सप्लाई जो एक्सपो है इसका सेहरा आपके साथ इसलिए जाता है क्योंकि बड़ा इनिशिएटिव है। जो एक्सपोर्टर छोटे छोटे SMEs दुबई जाते थे उनको आपने यहाँ प्लेटफॉर्म दे दिया, बहुत सारा खर्चा बचा लिया, और इस मौशी मुश्किलात हालात में जहाँ $1.25 अरब का हम नुकसान कर चुके हैं, पॉलिसीज़ नहीं, लेकिन फिर भी सदाकत टेक्सटाइल, सदाकत लिमिटेड कोशिश है। कितने पुरुमीद हैं और कितना देख रहे हैं इस वेंचर को आगे लेके जाने? मैं बहू का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी रिकमेंडेशन के ऊपर यहाँ पर अपनी पूरी इंटायर बायर्स की टीम को लेकर आए हैं। चेयरमैन और टॉप लीडरशिप यहाँ पे आई है, और मुझे इस बात की भी बेहद खुशी है कि जो हमारे SME एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको डायरेक्ट इंटरेक्शन का कस्टमर्स के साथ मौका मिला है, लोगों को रोज़गार मिलेगा। बहू ग्रुप जो है वो मल्टीपल प्रोडक्ट कैटेगरीज़ में पाकिस्तान से बाइंग कर रहे हैं, और भी चेयरमैन ने इस बात का अदा किया है कि इसे 10 टाइम्स बढ़ाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान मोस्ट कम्पिटिटिव है। ये पूरे साल बाइंग करेंगे, ये कोई वन टाइम बिजनेस नहीं है, ये फास्ट फैशन है। उन्होंने भरपूर एतमाद का इज़हार किया है पाकिस्तान की सनत के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हर साल पाकिस्तान की जो कंट्रीब्यूशन है एक्सपोर्ट्स में वो बढ़ेगी और ये सिलसिला चलता रहेगा। एक बड़ा आम सवाल होगा इस मौके पे ऊपर, जहाँ लोग पाकिस्तान को शॉर्ट ऑर्डर्स दे रहे हैं, लॉन्ग ऑर्डर्स नहीं दे रहे, वहाँ आप एक ऐसा ग्रुप लेके आते हैं जो एक पूरे साल के लिए बल्कि लंबा चलने के लिए आया है, और $1 अरब की एक्सपोर्ट बहुत बड़ा फिगर्स है हमारे लिए, जहाँ हम ऑलरेडी अगर ऐसी 2-3 कंपनीज आए तो हमारी एक्सपोर्ट और ख़ासतौर पर टेक्सटाइल के अंदर बहुत अच्छा वॉल्यूम ऐड होता है। इसमें यह है कि हमारी चेयरमैन से अभी गुफ्तगू हुई है, इसमें ये अपनी बेस बना रहे हैं पाकिस्तान में, तो ये लॉन्ग टर्म विजन के साथ आए हैं, ये वन टाइम बिजनेस नहीं है, और इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी भरपूर उम्मीद है कि मैक्सिमम सोर्सिंग तमाम प्रोडक्ट्स के अंदर पाकिस्तान से ही होगी। बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ हमारे साथ खुरम साहब भी मौजूद थे। आप एक सदाकत लिमिटेड से नौजवान मौजूद हैं, क्योंकि ये बड़ी हम देखते हैं जब भी सदाकत लिमिटेड को हमेशा से रोनुमा करने में, पोर्ट्रे करने में बड़ा किरदार अदा अपना करते हैं, और अपना एक मुस्बत किरदार जो अदा करते हैं। अच्छा, आपको इनिशिएटिव मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ग्रुप को पूरे को जाता है, कैसे देखते हैं, किस हद तक रिस्पांस है? मोर देन 30 फॉरेनर्स आपके पास मौजूद हैं। मैं खुद बरतानिया रहा हूँ, बोहो का बड़ा अच्छा नाम है वहाँ, बड़ा अच्छा प्रोडक्ट सेल करते हैं, आप इनको यहाँ लेके $1 अरब एक बहुत बड़ी फिगर है। अगर वो पाकिस्तान में आती है तो हम तो पिछले 9 माह के अंदर $1.25 अरब गवा चुके हैं। अगर ये वापस आ जाता है तो इट्स अ गोल्डन चांस। आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑफ इवेंट जो पाकिस्तान में हो रहा है, और फैसलाबाद में हो रहा है। सबसे बड़ा आपका जो सनत का शहर है उसमें हो रहा है, तो इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं हो सकती। हम खुश नसीब हैं। हमें चाहिए कि हम मिल के पाकिस्तान की एक पॉजिटिव इमेज अब पूरे ग्लोबल दुनिया के सामने सरबराह करें और सबको दिखाएं कि पाकिस्तान अच्छा है, पाकिस्तान इज़ सेफ़, एंड हम यहाँ पर बहुत कम्पिटिटिव हैं। हम इंडिया और अपने रीजनल कम्पिटिटर से बेहतर हैं, और हम मैसेज होगा हमारा उन लोगों के लिए जो 9 लाख लोग यहाँ से वीज़ा लेके बाहर जाते हैं नौकरियाँ करने, कि लोग पाकिस्तान की प्रोडक्ट को, मेक इन पाकिस्तान को सबसे पहले पिक करते हैं कि क्वालिटी बहुत है, प्राइस अच्छी है, और हम यहाँ से छोड़ कर जब जाते हैं तो डेफिनेटली हम अपने मुल्क के लिए भी मायूसी का बायस बनते हैं। इंशाल्लाह ये हमारा, हम बिजनेसमैन पूरी कम्युनिटी का ये वादा है पाकिस्तान से और हमारे मुल्क से कि हम जितना कर सकते हैं हम करेंगे, और एक एक बंदे को ये अपॉर्चुनिटीज़ देंगे। हमें हुकूमत की सपोर्ट चाहिए, हमें आप सब की सपोर्ट चाहिए, और इसी एजुकेशन पे हमें फोकस करना चाहिए, और इन चीज़ों के साथ हम पाकिस्तान को सबसे आगे लेके जाएंगे बिजनेस में इंशाल्लाह। बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। शराज हमारे साथ मौजूद है, लेकिन उससे पहले मैं एक ब्रेक लूँगा, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं और फिर ज्वाइन करेंगे। शराज बट हमारे साथ मौजूद है कि ऐसी एक्सपोज के हद तक हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकती है, और फॉरनर्स भी हैं उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। एक्सपो एक सप्लायर एक्सपो है, यूनिक है। पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव होने की ज़रूरत है जहाँ पाकिस्तान टेक्सटाइल के अंदर एक बहुत बड़ा कैपेसिटी मौजूद है, लेकिन बिलाशुबा बहुत सारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बहुत सारे मसाइल हैं। हमारे साथ शेख मुख्तार अहमद साहब मौजूद हैं, एक बड़ा नाम है फैसलाबाद की इंडस्ट्री के अंदर। शेख साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देखते हैं आप, तो इनिशिएटिव ले रहे हैं, मौके भी फराहम कर रहे हैं, लगता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान टेक्सटाइल दोबारा से बैकअप होगी? एक कोशिश है, एक कारवां है जो आप जिससे रवां दवां की होंगी? देखिए, जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो अपने तौर पे बड़ी कोशिश करते हैं, और सदाकत ख़ास तौर पे पहली दफ़ा हमने एक एक्सपो जो है उसके लिए सदाकत ने ये किया है अरेंजमेंट। बहू जो दुनिया की एक बहुत बड़ी ग्रोइंग नेट के ऊपर जो सेल करती है, ये दुनिया की एक बहुत बड़ी कंपनी है, और जो उन्होंने वादे किए हैं और इस वक्त परचेज़ कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसके ओनर को भी यहाँ पर लेकर आए हैं। उनका सीईओ भी आया है, और जो फाउंडर उनकी जो बहू की जो को फाउंडर थी वो भी यहाँ पर आई है। तो ये एक बहुत बड़ा एजाज़ है इस फैसलाबाद को। फैसलाबाद मैनचेस्टर कहलाता है, लेकिन आज तक यहाँ पर कभी एक्सपो का नहीं हुआ। यहाँ पर बहुत सारे मसाइल हैं जिस पर गवर्नमेंट को हेल्प करनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट का ध्यान इस वक्त एक्सपोर्ट की तरफ नहीं है। तो हम लोग अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में एक रिसेशन आया हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सपोर्ट इस वक्त सदाकत की अगर देखा जाए तो वो पहले से बेहतर है, और हमने मुख्तलिफ आर्टिकल बना रहे हैं। होम में हम पाकिस्तान में नंबर 3 है। हम डेनिम लेकर आए हैं, हम निट का लेकर हैं, और निट में हम गारमेंट बना रहे हैं काफ़ी अच्छा। आप देखेंगे कि ये यूरोप के मुकाबले में हम किसी कदर कम नहीं हैं, और हम दुनिया की अच्छी से अच्छी चीज़ बना रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जितनी भी मशीनरी है सारी यूरोपियन है, और उसके बाद हम पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि वो एक्सपोर्ट की तरफ ज़रा ध्यान दे, और उनके जितने भी मसाइल हैं उनको हल करें। हमारे साथ शेख साहब मौजूद थे, हमारे साथ फैशन एक्सपर्ट मौजूद। कैन यू कम ओवर हियर प्लीज़? फैशन एक्सपर्ट मौजूद हैं। शी इज़ फ्रॉम यूके, एंड हम इनसे कुछ अल्फाज शेयर करेंगे कि बहू से ही हैं, और ये यहाँ कुछ जो डिज़ाइन उनके फैशन के वजह से। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू यू इन पाकिस्तान। हाउ यू आर फीलिंग दैट इन पाकिस्तान, एंड व्हाट यू हैव लिसन्ड बिफोर एंड योर एक्सपीरियंस इन पाकिस्तान? Just feeling hugely inspired today, having seen a lot of the new manufacturers and looking at all the new fabrications, the denim, the jersey. It's really exciting. Do you think that the latest fashion of world, Pakistan is going according to that and making product according to that? Without doubt. I think what I've found here is some new techniques, new washes that you just can't get anywhere else. So it's been, hugely inspiring, like I said. So if we comparison with the world, so prices and the quality is going to be up to the mark? That's what we're here to find out. So you are hopeful to have a good orders from Pakistan? Very hopeful. बहुत थिंकफुल। शराज भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। शराज, आप मेरे साथ आ जाएं। तो इन्होंने बहुत ही ब्रीफली एक चीज़ बयान की है कि जो लफ्ज़ ये बड़े कम हमें मिलते हैं सुनने को, अप टू मार्क, क्वालिटी, प्राइस, इसलिए वो कह रहे हैं हम यहाँ हैं। $1 अरब के $1.25 अरब हम 9 माह में गवा बैठे हैं, और यहाँ $1 अरब के ऑर्डर्स लिए ये आए हैं, और यहाँ से लेकर जाएंगे। बहुत 2-3 ऐसे बड़े एक्सपोर्टर्स और कोशिश करें सदा की तरह, तो पाकिस्तान में तो बहुत सारे हम ये बरामदात को $4-5 अरब ऊपर लेके जा सकते हैं। बिलाल, सबसे पहले तो ये इम्पॉर्टेंट है कि बूहू एक ऐसी कंपनी है जो कि $4 बिलियन की कंपनी है, और $4 बिलियन US में से दे आर इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट $1 बिलियन इन पाकिस्तान। ये कोई पाकिस्तान के लिए इतनी बड़ी खुशकिस्मती है, मैं कहता हूँ कि बूहू इज़ इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग $1 बिलियन इन पाकिस्तान। जो कि हम जाते हैं जर्मनी जाते हैं, आपको पता होगा कि हम वहाँ से फ्रैंकफर्ट से ऑर्डर्स लेके आते हैं। इस तरह की इंटरनेशनल हेम टेक्सटाइल्स होती हैं, इस तरह की नुमाइशें होती हैं, टेक एक्सपोज होती हैं, और हम वहाँ जाकर के अपने स्टॉल्स लगाते हैं छोटे छोटे, और वहाँ से फिर हम बायर से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें ऑर्डर्स दीजिए। ऑनलाइन सबसे बड़ा जो ग्रुप है वो ये एक सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त दौर ही ऑनलाइन शॉपिंग का है, और इस वक्त जो कि सदाकत एक ऐसा ग्रुप है जो कि ना सिर्फ अब नेटवेयर में रहा है, गारमेंट्स में रहा है, बल्कि अब वो डेनिम में भी आ गया है, और डेनिम में भी उन्होंने अपना नाम बनवाया है, और इस वक्त पूरे पाकिस्तान के वाले से बात की, 2nd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स हैं वो नेटवेयर में, गारमेंट्स में, होम टेक्सटाइल में, और अब डेनिम में भी वो अपना नाम बना रहे हैं। तो सदाकत ग्रुप है, इसमें 15 ऊपर फ्लोर के ऊपर 15 बड़े सप्लायर्स यहाँ पे मौजूद हैं, कंपनीज मौजूद हैं।
फिर इसके बाद कराची आना है, सियालकोट आ चुका है। बिल्कुल, यहाँ पर फैसलाबाद की, सिर्फ फैसलाबाद की बात करें तो फैसलाबाद से 15 ऐसे कंपनीज़ बड़ी मौजूद हैं जो कि नेटवेयर और गारमेंट्स में डील कर रही हैं। तो 15 कुछ ना कुछ अपने ऑर्डर्स लेके जाएंगी। फिर सदाकत है इटसेल्फ, सदाकत अपना ऑर्डर लेके जाएगा। यहाँ पर एजेड अपैरल है, इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज यहाँ पर मौजूद है, लाहौर फैशंस मौजूद है। तो ये एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है हमारे यहाँ के जो गारमेंट्स मेकर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके लिए कि कंपनी एक बूहू जो कि ऑनलाइन ब्रांड है, आपने बताया कि वो खुद चल करके यहाँ पर आया। उनके CEO यहाँ मौजूद हैं, उनके चेयरमैन यहाँ मौजूद हैं, उनके डिज़ाइनर्स मौजूद हैं, फैशन डिज़ाइनर्स मौजूद हैं। दे आर एवेल्यूएटिंग द नेटवेयर, द GSM ऑफ द क्लोथ, कितना GSM होगा, कौन सा, वो अपने सामने देख रहे हैं। हमारे यहाँ पर क्या होता था, एक रविश, एक रिवायत थी कि यहाँ से कंपनी मालिकान डायरेक्टर्स जो हैं वो बैग पैक करके लेके जाते थे सैम्पल्स का, और वहाँ जाके सैंपल्स दिखाते थे। और यहाँ पे आपके सैंपल्स देखें, यहाँ पर लगे हुए हैं और यहाँ पर लोग बायर्स खुद आ रहे हैं। इसका मतलब है कि पाकिस्तान अच्छी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, पाकिस्तान के इंडस्ट्रियलिस्ट के अंदर कैपेसिटी है। इन अ नट शेल में बात करना चाहूँगा कि गवर्नमेंट अगर हमें मौक़े देती है इस लिहाज से कि हमने यहाँ पर जो है वो एक्सपोज करवानी है, हमें यहाँ पर अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को फैसिलिटेट करना है बिजली में, गैस में, तो मेरे ख्याल में अगर ये हालात अगर इस कंडीशन में, पॉलिटिकल कंडीशन में ये हालात हैं, तो जब माहौल साजगार होगा तब हम कितना बिजनेस कर सकते हैं, अब इमेजिन करें। हम लोग पॉजिटिव समझ रहे हैं, सदाकत को इसका क्रेडिट जाएगा। बिल्कुल, ये जो चीज़ें चैम्बर्स को या हमारी बहुत सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को करना चाहिए, वो सदाकत कर रहा है। और मेरे ख्याल में ये लॉयल्टी है कि जहाँ से लोग अपने बिज़नेस शिफ्ट करने का सोच रहे हैं, ये बिज़नेस लेके आने का सोच रहे हैं। बिल्कुल, ये बिज़नेस लेके आने का सोच रहा हूँ। मैं ये कहता हूँ कि अगर इस तरह की पॉलिटिकल कंडीशंस के अंदर हम इतना ज़बरदस्त परफॉर्म कर सकते हैं, और कि जब हमारी गैस भी महंगी, जब हमारी बिजली भी महंगी, हमारे DLTL हमें नहीं मिल रहे, हमारे एक्सपोर्टर्स जो है परेशान हैं, तो इस मौके पर हम इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखा रहे हैं हमारे एक्सपोर्टर्स। तो अगर माहौल साजगार होगा, जब बिजली सब्सिडाइज होगी, जब टेक्सटाइल पैकेज होगा हमारे पास, जब हमें फैसिलिटेट किया जाएगा, तब आप सोचें कि एक्सपोर्टर्स जो है किस हद तक वो है परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल में हमारी कैपेसिटी है इंडस्ट्रियलिस्ट की। मैं यहाँ ग्लोबल वाले मौजूद हैं, इनकी तरफ बढ़ूँगा। इनके दोस्त हैं हमारे साथ, उनसे बात की कोशिश करते हैं। आप थोड़ा सा यहाँ आ जाए हमारे पास, ताकि ये गुफ्तगू जारी रहे और इनसे हम गपशप कर सकें कि ये देखें बायर मौजूद है, वो यहाँ आके इंटरेस्टेड है, प्रोडक्ट की क्वालिटी और रेट के ऊपर बड़ा सेटिस्फाई है। वो बात हमारे लिए बड़ी काबिल फ़ख्र होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा रिस्पांस देख रहे हैं और कैसा इसको इनिशिएटिव देखते हैं कि पहले दुबई या दीगर ममालिक में जाके अपनी चीज़ें प्रेजेंट करना पड़ती थी, अब आप यहाँ लगाया हुआ एक स्टॉल है जब, और ग्राहक बैठा है, ग्राहक के पास टाइम है, आप उसको कन्विंस कर सकते हैं प्राइस से, क्वालिटी से, और प्रोडक्ट्स दिखा सकते हैं। वहाँ सिर्फ एक ब्रीफ केस होता है, उसके अलावा दिखाने वाला कुछ। जी, ये पाकिस्तान के लिए स्पेशली इन हालात में एक बिग अपॉर्चुनिटी है कि वी आर डिस्प्लेइंग एवरीथिंग फ्रॉम many brands will come here from UK and European countries. So I think ये एक बड़ी हमारे लिए बिग पॉइंट है कि हम जैसे कि इंडिया, बांग्लादेश को मीट कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ कि जहाँ हम पाकिस्तान SME को ग्रो करने की बात करते हैं, गवर्नमेंट तो अपने तौर जो कर रही है वो नज़र नहीं आ रहा होगा, जा रहा होगा क्या है, लेकिन यहाँ देखें एक छोटी छोटी कंपनीज़ को ऑर्डर ले रहे हैं और उनका टारगेट $1 अरब है, जो एक बहुत बड़ी अमाउंट है। जी, ऐसे ही है। ये पहले हमारी इंडिविजुअल मीटिंग्स एवरी फैक्ट्रीज़ के साथ हो चुकी हैं, इन ब्रांड्स के साथ। तो अभी हम अपनी प्रोडक्ट जो है वो डिस्प्ले में लेके आ रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे बिहाइंड में, कैमरामैन दिखा सकता है जी। तो इसमें जो है वो हम अपने डिस्प्लेज में लेके आ रहे हैं चीज़ें, और हमें ऑर्डर्स मिल रहे हैं। जैसा कि CEO और चेयरमैन ने अनाउंस किया कि $1 अरब जो है ना वो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान में। तो ये हमारे लिए और तमाम SMEs के लिए, गो के मुल्क के हालात कैसे भी हैं, लेकिन हम अपना हिस्सा मुल्क की ग्रोथ के लिए, बेहतरी के लिए हम दिन रात एफर्ट कर रहे हैं। चलिए, एक्सपोर्टर्स अपने तक कोशिश कर रहे हैं। स्टॉल मैं ख्याल में याद साहब से कहूँगा थोड़ा सा दिखा दें इनका, ताकि जो इन्होंने प्रोडक्ट्स जो हैं वो आइकॉन फैशन का ये स्टॉल है। तो ग्लोबल आइकॉन फैशन, जी, ग्लोबल आइकॉन फैशन की तरफ से ये सारी डिस्प्ले लगाए गए और बायर्स मौजूद हैं। ये हमें बरतानिया या दीगर ममालिक में या दुबई, जर्मनी में नज़र आती हैं, जब वो अपने ग्राहकों से ऐसे डायलॉग्स कर रहे होते हैं और देखें प्रोडक्ट्स दिखाई जा रही हैं कि हमारे पास ये भी है। ये सरवर, मियां मोहम्मद सरवर, चेयरमैन, CEO ग्लोबल आइकॉन फैशन विल रिप्रेजेंट देयर प्रोडक्ट्स ऑन द कस्टमर्स। बहुत शुक्रिया जी सर साहब। अगर आप हमारे पास जुनेद साहब मौजूद हैं,
आप खुद आ जाएं ज़रा 2 मिनट के लिए। चले वो अपने ग्राहकों के साथ अभी गुफ्तगू शनीद कर रहे हैं और उनको कायल किया जा रहा है और मेरे ख्याल में ये अच्छे ऑर्डर्स हैं, क्योंकि अगर जो CEO या चेयरमैन ग्रुप है वो खुद अपने मुंह से ऐलान कर रहा है, हमारे साथ उन्होंने गुफ्तगू में कहा $1 अरब की बरामदात हम यहाँ से ले जाने के ख्वाह हैं, और ये कराची लाहौर नहीं आ रहे बल्कि उन एक्सपोर्टर्स को यहाँ बुलाया जा रहा है जो कि बहुत ही खुश आइंदा। आगे लिए चलते हैं प्रोग्राम में। प्रोग्राम में आगे बढ़ें तो ये अपर साइड पर स्टॉल है जहाँ महज 15 से ज़ायद हैं। आज सिर्फ अगर फैसलाबाद की बात करें, लाहौर की, फिर कराची है, सियालकोट है, मुख्तलिफ शहरों से आने वाले जो एक्सपोर्टर्स हैं, अपैरल गुड्स के एक्सपोर्टर्स हैं, वो अपने स्टॉल लगाए हुए हैं। अलायंस अपैरल है, स्मार्ट है, लाइटपुर नेटवेयर है, KM टेक्स है, स्मार्ट अपैरल है, इधर लाहौर फैशन है। हमारे और अहमद भाई मौजूद हैं। अहमद भाई से आगाज़ कर लेता हूँ। भाई बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। कैसे देखते हैं कैसी एक काविश है जहाँ ये सब कुछ उठा के लेकर जाना पड़ता था, यहाँ अब अपनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स दिखा सकते हैं, ज़रा डिस्कशन हो सकती है, उनसे बहस भी हो सकती है, उनको कन्विंस भी किया जा सकता है। और एक बड़ा पॉजिटिव साइन है कि वो कन्विंस नज़र आए मुझे, और वो कह रहे हैं कि हम $1 अरब इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। तो ये इतना हेल्दी साइन है कि एक्सपोर्टर ख़ुद बड़ा पॉजिटिव है अपने इस कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट करने के लिए और इन्वेस्ट करने के लिए। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप इसके बारे में कि ये एक एक्सपोज अगर इस तरह की होंगी पाकिस्तान में तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान का बिजनेस बढ़ेगा। बूहू की बात आप करें तो इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट रिटेलर्स इन द वर्ल्ड फॉर ई-कॉमर्स एंड द फास्टेस्ट ग्रोइंग वन। तो ये एक इधर बूहू को लेकर आना सदाकत ग्रुप की, फैसलाबाद की एक बहुत बड़ी काविश है इसके अंदर। और आपको पता है कि अगर ज़्यादा लोग इधर आएंगे तो एक ह्यूमन इंटरेक्शन इज़ टोटली डिफरेंट, जैसे आप इंडिया में देखते हैं, बांग्लादेश में देखते हैं कि सारे बायर्स जो हैं उधर ट्रैवल करते हैं। तो ये एक आगाज़ है, लेकिन इंशाल्लाह आगे बेहतर होगी। 4.5 अरब पाउंड से ज़ायद की मालियत की कंपनी और सबसे ज़्यादा तेज़ ग्रोइंग, ये कितना पॉजिटिव है कि ये वो कंपनी है जो IT में, ऑनलाइन में ज़्यादा स्पीडली ग्रो कर रही है पूरी दुनिया के अंदर, और जहाँ दुनिया ही अब ऑनलाइन है। अगर आप देखें ई-कॉमर्स में तो बूहू इन लास्ट 3 years हैव सीन अ ग्रोथ ऑफ 200-300%। और इनकी स्टाइलिंग आप देखें तो ई-कॉमर्स पे दे हैव द लार्जेस्ट SKUs यू कैन सी ऑल ओवर द वर्ल्ड। देन दे आर डीलिंग नॉट ओनली, ई-कॉमर्स सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि सिर्फ एक कंट्री में नहीं है, UK में भी कर रहे हैं, यूरोप, US, नॉर्थ अमेरिकन मार्केट, मिडल ईस्टर्न मार्केट, सो इट इज़ ग्रोइंग। अभी तक आपको इनका इंटरेस्ट ज़्यादा किस प्रोडक्ट्स में नज़र आया है? क्योंकि यहाँ निटवेयर भी पड़ा है, यहाँ पैरल भी है, स्पोर्ट्स वाले भी मौजूद हैं, तो ज़्यादा इनकी किस तरफ आपको इंटरेस्ट नज़र आ रहा है कि जहाँ ये ज़्यादा अपना इन्वेस्ट करने के लिए ख्वाहिशमंद है? जी, डेनम को भी काफ़ी ये देख रहे हैं पाकिस्तान से कि जी पाकिस्तान से जो डेनम है वो काफ़ी कम ली जा रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड, एज बांग्लादेश इज़ दी प्लेयर इन दिस इन डेनम। तो लेकिन डेनम का ज़्यादा है इस दफ़ा, निट से ज़्यादा आप कहें तो डेनम इज़ मोर फोकस्ड बाय द बूहू टीम। आप इनसे डिस्कशन करें कितने क्वालिटी के ऊपर कितने की ये शोर, क्योंकि मैंने क्वेश्चन किए, मुझे तो बड़ा पॉजिटिव आंसर उनका, बिकॉज वी आर हेयर सो दिस इज़ द प्रूफ। आप इसको कैसे देखते हैं, कितना अभी तक जो, क्योंकि एक कंपनी के बहुत सारे लोग मौजूद हैं, तो उनका ट्रस्ट का लेवल क्या है हमारी क्वालिटी के ऊपर, प्राइसेस? If you talk about Boohoo, we have been working with them for last 4 years. So we haven't got any complaint of fabric. अगर आप फैब्रिक वैसे भी अगर आप जनरलाइज्ड करें तो पाकिस्तान इज़ बेटर देन इंडिया, बांग्लादेश, हमारी कॉटन अच्छी है, तो इट मेक्स अ डिफरेंस विद दैम। बहुत शुक्रिया अहमद भाई। यहाँ हमारे साथ और एक ग्रुप मौजूद है अलायंस का, इनकी तरफ बढ़ेंगे। यहाँ दोस्त मौजूद हैं, इनसे ज़रा गुफ्तगू कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अल्हम्दुलिल्लाह। स्टॉल लगाना जहाँ आउट ऑफ कंट्री जाके लोग बल्कि मालिका नहीं अफोर्ड करते थे, जाते थे, जाकर खुद डिज़ाइन करते थे। आप लोगों को भी एक्सपीरियंस हो रहा है और यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैव अ सीट प्लीज़। प्रेजेंट करने का मौका। एक्चुअली इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। आई थिंक सो मोस्ट अपना जो मज़ीद सप्लायर्स हैं उनको प्रमोट करने का मौका मिल रहा है। मीन्स ऐसे लोग जो कि बाहर नहीं जा सकते और मीन्स नहीं अपने बिज़नेस को प्रमोट कर सकते, इट्स रियली अ गुड वन and I think so it's a very good initiative. Means we have to do further, means like this, means Primark, Doherty, other customers we need to get them in, so get the business again onto the same actually. ये अपनी बड़ी प्यारी बात की है कि जहाँ एक बूहू ग्रुप है वहाँ बहुत सारे और ग्रुप हैं, उनको कन्विंस करके लेकिन अगर ये $1 अरब इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमें बहुत सारे अरब डॉलर सिर्फ यहीं से इन्वेस्टमेंट मिल सकती है। और चले गए हैं जो चले गए हैं हमारी ABC किसी भी रीजंस की वजह से, प्राइसेस की वजह से, दे कैन कम ओवर हियर, वी कैन नेगोशिएट द प्राइसेस। इट्स अ गुड चांस। मीन्स जब आप फेस टू फेस किसी के साथ डिस्कशन कर रहे हैं ना तो आप प्राइसेस नेगोशिएट की पोजीशन में आ जाते हैं। एंड इट वाज रियली अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। मीन्स आज हम लोगों ने जो अलायंस अपैरल को प्रेजेंट किया एंड इट सीम्स लाइक कि हमारी प्राइसेस और चीज़ें वंस अगेन मीन्स अल्टीमेटली अपना जो बेनिफिट है वो पाकिस्तान को है, तो हम लोगों को इनिशिएट करना चाहिए डेफिनेटली अदर ब्रांड्स को विच आर मूविंग टू द अदर कंट्रीज़। सो इट्स रियली गुड वन।
अच्छा, आपने भी जो ग्राहक हैं उनसे रब्ता किया, उनसे गुफ्तगू की, कितने पॉजिटिव नज़र आए? क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जो बायर सामने बैठा उसका पॉजिटिवनेस होना बहुत ज़रूरी है। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, उन्हें भी हमारे साथ नेगोशिएट करने का मज़ा आया है। वो उन्हें हम अच्छे लगे हैं, हमारे साथ उनके प्राइसेस मीट हुए हैं, इसीलिए उन्होंने हमें सुबह बुलाया दोबारा से। इंशाल्लाह वी विल बेस्ट। और ये कितना इंपॉर्टेंट है कि एक छोटे छोटे ग्रुप्स को बड़े ग्रुप्स बनाने के लिए काविश बहुत जरूरी, क्योंकि जहाँ एसएमई को बहुत कम अपॉर्चुनिटी मिलती है और एसएमई ही पूरी दुनिया के अंदर ग्रोथ के अंदर कैपेसिटी बिल्डर्स होते हैं जो ज़्यादा जॉब्स अपॉर्चुनिटी देते हैं उनके पास, क्योंकि एलएसएम तो एलएसएम बन चुका होता है। हमारे पास ज़्यादा टेक्सटाइल को अगर आप प्रमोट कर रहे हैं ना, तो आप सबसे ज़्यादा जॉब्स को जो है ना आप टेक्सटाइल से ही निकाल सकते हैं। आपको इसको प्रमोट, इसको सब्सिडाइज करने की ज़रूरत है। जॉब्स होती भी एसएमई के पास हैं, एलएसएम के पास। बिल्कुल सही है, इसको सब्सिडाइज करें, इसको प्रमोट करें, मजीद ग्रुप्स को बनाएं, ऐसे कस्टमर्स को बनाएं जिनकी प्राइस स्लॉट मजीद अच्छी है। बूहू की प्राइस स्लॉट अच्छी है। आज हम लोग अपनी जो वर्सेटाइल कलेक्शन लेके आए, मसलन कि हम लोग जो भिजवा के पार्सल्स भिजवा के कस्टमर को कन्विंस करते थे, आज जब उन्होंने फेस टू फेस कलेक्शन को देखा, मीन्स दे वर वेरी मच हैप्पी। दे हैव कॉल्ड अस अगेन टुमारो कि आप आएँ, हमसे डिस्कशन के प्राइसेस को मीट आउट करें और वी विल क्लोज इट। लाहौर फैशन से दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनकी तरफ बढ़ूँगा कि वो यहाँ इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। और दोस्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोइस। अच्छा मोइस, लाहौर फैशन के दोस्त हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं, उनसे बहुत सारे इंटरव्यूज़ हमारे होते रहते हैं, बड़े पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक हैं पाकिस्तान की ग्रोथ में। कैसा ग्राहक नज़र आया आपको आज लाहौर फैशन की तरफ से? आप अगर बोलें सदाकत की या काविश को कैसे देखते हैं कि यहाँ ग्राहक को लेके आना और डोर स्टेप पे आप बहुत सारी चीज़ें, ज़्यादा प्रोडक्ट्स दिखा सकते हैं और कितना कन्विंस करने का आसानी से मौका मिला? देखिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी उनकी तरफ से भी और कस्टमर की तरफ से भी कि कस्टमर खुद यहाँ पे आया। और हमारे एक तो जो न्यू बच्चे हैं जो मतलब नए इस फील्ड में नए हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि वो अपना सारा लिंक दे सकें, उनको सारा अपना एक नया तजर्बा ले सकें उनसे। और दूसरा डोर स्टेप पे है सारा कुछ कि आप अपनी एक्सपीरियंस मोस्टली ज़्यादा आपका बिल्ट होता है इसमें से। बाकी कस्टमर के साथ मुलाकात भी अच्छी थी, सारा कुछ मतलब अच्छा था सारा। एक और चीज़ आप हैं, पहले मालिक जाते थे वो बैग उठा के ले जाते, क्योंकि डेफिनेटली ट्रैवलिंग इतनी है ज़्यादा महंगी है, तो वो कोशिश होता है खुद जा कन्विंस करे। और वहाँ अगर आप ऑनलाइन भेज रहे हैं तो एक पार्सल भेजेंगे, वो अच्छा पसंद आ गया तो ठीक है। यहाँ बहुत सारे दिक्कत पार्सल कोई ऊंच नीचे वो भी ठीक करके उसे बता सकते हैं। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट, जब फैक्ट्री विज़िट करवाते हैं तो वहाँ से एक बड़ा डिफरेंट इमेज आता है। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए अगर $1 अरब की बार बार बात कर रहे हैं तो बड़ा पॉजिटिव साइन है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि इसमें जब हम पार्सल भेजते हैं तो उसके ऊपर भी कॉस्ट आती है, हमारी कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम हो गई इससे। और दूसरा कि हमारे लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी है कि कस्टमर को एक से ज़्यादा चीज़ें हम उसमें पार्सल भेजते हैं, उसमें एक चीज़ जाती है कस्टमर के आगे। इधर हम वो फास्ट चीज़ें उसको दिखा सकते हैं कि यार ये भी ये भी ये भी ये भी। अब वो कस्टमर के लिए भी इजी है और हमारे लिए भी इजी है कि हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो जाती है और हमारी भी सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि कस्टमर हमारा सेटिस्फाई और हमारे लिए ऑर्डर बिल्ड करने का ज़्यादा चांस होता है। बहुत शुक्रिया। ये दोस्त मौजूद है, ये देखें जी, मैं अगर प्रोडक्ट्स हूँ, मुख्तलिफ नौइयत के प्रोडक्ट्स जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं और डिस्प्ले किए गए हैं ताकि आने वाले ग्राहक को हर तरह से जो है प्रोडक्ट्स क्वालिटी, अगर मौसमियाती तब बात करें तो उसके हवाले से बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं ताकि कन्विंस करके ग्राहक को यहाँ तक कहा जाए कि वो यहाँ से प्रोडक्ट लेके जाइए। हमें बहुत सारी चीज़ें बरतानिया में नज़र आती है। स्पोर्ट्स के सियालकोट का एक ग्रुप है, क्लब्स स्पोर्ट्स जो है वो बोहो ग्रुप के साथ सियालकोट से आया है। इनके भी दोस्त मौजूद हैं, हों तो डेफिनेटली इनसे बात करेंगे, लेकिन यहाँ से आपको मज़ीद प्रोग्राम में आगे ले चलते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ मज़ीद फैसलाबाद के मैन्युफैक्चरर्स मौजूद हैं, उनकी तरफ बढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। कैसे देख रहे हैं कि बायर आया हुआ है, बायर को कन्विंस भी आप अभी करते हैं, हमने देखा पॉजिटिव साइन है कि फैसलाबाद पाकिस्तान के ऊपर एतमाद करने के लिए लोग तैयार हैं। जहां हम हर तरफ देखें टेंशन है, माहौल देखें तो बहुत सारे लोग पता नहीं क्या हो जाना है, आज शिफ्ट कर लें, फैक्ट्रियाँ उठा लें, लोग 7-8 लाख बाहर चले गए। वहाँ ऐसे माहौल में ऐसी चीज़ें किस हद तक अच्छी और अप्रिशिएट देखते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो इस वक्त कारोबारी हालात चल रहे हैं उस हवाले से अगर देखा जाए, ये यूके का एक बहुत बड़ा ग्रुप है, बहु ग्रुप, जिसके लिए ये सारी एक्सपो हुई है। हम भी इसमें अपनी प्रोडक्ट लेके आए और उम्मीद है इंशाल्लाह कि इसमें कोई अच्छे ऑर्डर्स निकलेंगे। अच्छा, एक चीज़ बड़ी अहम है कि जब हम बात करते हैं एसएमईज़ की, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ की, तो पूरी दुनिया के अंदर एलएसएम के ऊपर इतना तवज्जो नहीं दी जाती जितनी एसएमई, क्योंकि ग्रोथ की पावर सिर्फ एसएमई के पास मौजूद होती है। एलएसएम तो पहले वो अपना फूल के उतना पहुँच चुका होता है, वो एक्सट्रीम पे होता है। तो ये कितने अच्छे साइन है कि अब कुछ ऑर्डर्स के साथ ये जो एसएमईज़ हैं इनको ग्रोथ का मौका मिल रहा है। जी, मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये जो एक्सपो है ना, इसके बाद कोई जो छोटे इंडस्ट्री है ना, इसके लिए इंशाल्लाह कोई अच्छी ग्रो होगी,
क्योंकि जो इनके साथ बायर के साथ मीटिंग चल रही है ना, इसमें जो ऑर्डर्स कलेक्ट हो रहे हैं उसकी वजह से इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो स्मॉल इंडस्ट्री है ये बहुत बेहतर हो जाएगी। प्राइसेस का कुछ इश्यूज हमारे पाकिस्तान में एनर्जी और गैस का चल रहा है, उसके ऊपर बिहाफ पे कोई गाहक के साथ कोई इश्यूज आ रहे हैं या सेटल डाउन हो रही हैं? नहीं, ये प्राइसेस के ऊपर अभी काफ़ी ज़्यादा इश्यूज हैं, वो प्राइसेस मीट करना बड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का और गैस की प्राइसेस और यान की प्राइसेस बहुत अप चली गई हैं, उसकी वजह से ये थोड़ा इशू आ रहा है। लेकिन अभी देखते हैं, जैसे भी उसको सेटल डाउन तो करना है, बाकी इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ कोई उम्मीद है कि बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, बांग्लादेश हमारे पास, वियतनाम है, श्रीलंका ग्रोथ शो कर रहा है, तो कितना ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए दोबारा रिवाइव बैक करना और गाहक को एक अच्छी प्राइस देना ताकि हमारे कंपेटिटिव कंट्री से हम दोबारा उनके बराबर आ सकें? देखो, कंपटीशन तो पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान अभी ग्रो कर रहा है, सही है, और ग्रो अच्छी तरह से कर रहा है। उसमें इन जैसे सप्लायर्स है वो काफ़ी साथ दे रहे हैं, तो ये यूके ग्रुप के लिए, बूहू ग्रुप के लिए, पीएलटी ग्रुप के लिए, उनके लिए बहुत बढ़िया बात है ये, और बहुत ही आने वाला समय जो है, आने वाला वक्त जो है वो बहुत ब्राइट है, मैं समझता हूँ। बूहू ग्रुप अगर सिर्फ $1 बिलियन की इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है तो इसका मतलब है कि यहाँ कैपेसिटी मौजूद है एक्सपोर्टर्स के बाद, क्योंकि एक बड़ी गुड जेस्चर होगा और एक हमारे पास एक एग्जांपल आएगी जो हम सब ने एक पेश कर देखें, बूहू आ गया तो कोई और भी आ सकता है। और वेरी गुड थिंग इज़ दिस के ऑनलाइन ग्रुप आ रहा है, कोई दूसरा ग्रुप नहीं है बल्कि ऑनलाइन स्टोर्स जो कि आजकल पूरी दुनिया में अंदर सबसे बड़ा ट्रेंड। बिल्कुल बिल्कुल, यही पॉजिटिविटी है कि अभी लोग आ रहे हैं, पाकिस्तान आ रहे हैं। पहले सभी डरते थे, अभी आ रहे हैं पाकिस्तान में और लोग बिजनेस करना चाहते हैं, इसीलिए यही बूहू ग्रुप आज इधर है और आने वाले वक्त में और काफ़ी लोग आएंगे इंशाल्लाह। प्राइसेस के ऊपर आप क्या कहते हैं, क्वालिटी? देखो, प्राइसेस तो हर जगह, हर वो हाँ वो चलता है, वो तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, इधर उधर कुछ हो जाता है, चलता है, उसमें क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, प्राइस में कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे लेकिन क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया। ये बड़ा एक हमारे पास गुड जेस्चर है कि प्राइस के ऊपर हमारे मुल्क की क्योंकि बरामदात बढ़ानी है, तो ये सारे फ़ख्र हैं। मैं जब भी बरामदात की बात करता हूँ एक्सपोर्टर्स को हमेशा कन्विंस किया जाता है कि ये पाकिस्तान के लिए एक फेस है जो पॉजिटिव इमेज हमारा पूरी दुनिया में दिखाते हैं। और मेरे ख्याल में जब हम बहुत सारे अरब डॉलर लगा के, हम हज़ारों मिलियन लगा कर एम्बेसडर्स तैयार करके भेजते हैं, वो वहाँ जाके जो भी करें, लेकिन कमर्शियल अताशीज़ का काम ये होता है जो ये सदाकत लिमिटेड यहाँ कर रहा है कि वहाँ जाके इनकी प्रोडक्ट्स को वहाँ मौके मौजूद फराहम किए जाएँ ताकि जो गाहक हैं उनके साथ नेगोशिएट करके चीज़ों को आगे पोर्ट्रे किया जाए। प्रोग्राम में आगे ले चलते हैं। प्रोग्राम के आखिर के अंदर हम सदाकत लिमिटेड की इस काविश को सराहते हुए ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि ऐसी बहुत सारे ग्रुप्स को आगे बढ़ना चाहिए। मेरे अकब में होने वाली ये एक जो कॉन्फ्रेंस का सिलसिला आप देख रहे हैं, सप्लायर एक्सपो का सिलसिला देख रहे हैं, बहुत सारे हमें बैरूनी ममालिक के अंदर देखने को मिलते हैं जहाँ गाहक और मैन्युफैक्चरर जो हैं 1-to-1 मीटिंग्स कर रहे होते हैं। लेकिन ये चीज़ बड़ी हेल्दी है कि यहाँ इस हेल्दी इन्वायरमेंट के अंदर चीज़ें हो रही हैं जहाँ बहुत सारा तनाव है इस मुल्क के अंदर, माहौल के अंदर, शहर के अंदर, लेकिन वहीं एक बहुत पुरअमन, एक पॉजिटिव जेस्चर के साथ चीज़ें चल रही हैं जिसको हमें सपोर्ट भी करना है, प्रमोट भी करना है। और मकसद भी प्रोग्राम का ये था कि इन चीज़ों को प्रमोट करना, ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। पाकिस्तान से चले जाना बहुत आसान होगा, लेकिन पाकिस्तान के अंदर रहते हुए इस पाकिस्तान को बिल्ड करना, वो लोग यकीनी तौर पे काबिल तहसीन हैं और उनको खराज तहसीन पेश करना हमारा बनता भी है। बूहू ग्रुप का भी शुक्रिया कि उन्होंने एतमाद किया, पाकिस्तान के ऊपर $1 अरब की बरामदात करने का एक इरादा जो है वो जाहिर किया। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।